بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، بالکل کسی کو لپیٹی ہے نا، سیدھا سیدھا۔ ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ، لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی إبراہیم إنک حمید مجید۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔
جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جماعت غرباء اہل حدیث کے زیر اہتمام حیدرآباد نمبر 12 میں لطیف آباد نمبر 12 میں محسن انسانیت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مجھ سے قبل اگرچہ مختصر وقت ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لیا، لیکن بڑی قیمتی باتیں مجھے اور آپ کو بتائی گئی، نصیحت کی گئی۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد بھی علماء کی بہت بڑی تعداد ہے، کثیر تعداد ہے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے، پھر اس میں ان صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ افضل، بہتر، برتر اللہ نے جس کو مقام عطا کیا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس حوالے سے میں نے کچھ ذکر کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ ایمان نصیب فرمائے جو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو نصیب فرمایا تھا، اور وہ طرز زندگی اپنانے کی مجھے، آپ کو، مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے جو طرز زندگی اللہ نے نبی کے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے براہ راست دین سیکھا ہے۔ قرآن مجید کا اللہ تعالی نے نزول فرمایا، اور اس قرآن کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں چناؤ فرمایا ہے، اپنے بندوں میں رب العالمین نے اس قرآن کے لیے چناؤ کیا، انتخاب کیا، کس حوالے سے کہ میں اللہ اپنے اس قرآن، اس کلام کا وارث بناؤں گا۔ پوری امت وارث ہے اس قرآن کے۔ لیکن سب سے پہلے وارث اگر اس قرآن کے کوئی ہے، کسی کو اگر یہ اعزاز سب سے پہلے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا، جن کا چناؤ کیا اس کتاب کے لیے، وارث بنایا،
نبی علیہ السلام پر اس قرآن کو نازل کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اس قرآن کا وارث بنایا. صحابہ سب سے پہلے وارث بھی صحابہ اس قرآن کے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے تمام بندوں کے دلوں پہ اللہ نظر ڈالتا ہے. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. تمام بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل اگر اللہ نے کسی کا پایا ہے تو وہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. پھر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاصطفاہ لنفسہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی کائنات کے امام کے دل کو سارے دلوں میں بہتر پایا تو اللہ نے اپنے نبی کائنات کے امام محمد علیہ السلام کو اپنے لیے چن لیا اور اپنے لیے انتخاب کر لیا. اپنے لیے. پھر دنیا والوں کے لیے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کر دیا. نبی کے انتخاب کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ویسے تو اللہ سب کو جانتا ہے، ہر دل کو جانتا ہے، ہر دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں ان کو جانتا ہے، ہر دل میں دھڑکنے والی دھڑکنوں سے رب العزت واقف ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کے نبی کے انتخاب کے بعد رب العزت نے پھر لوگوں کے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی. اللہ کے نبی کے دل کے بعد اگر کسی کے دل اللہ کو بہتر نظر آئے تو وہ اصحاب محمد کے دل نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دل کے بعد صحابہ کے دل بہتر نظر آئے. اللہ تعالی نے نبی کو اپنے لیے چنا تھا، نبی کے صحابہ کو محمد علیہ السلام کے لیے چن دیا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے لیے چن لیا. فَجَعَلَهُمْ نُظَرَاءَ. پھر رب العالمین نے محمد علیہ السلام کے جانثاروں کو، جانشینوں کو، صحابہ کرام کو محمد علیہ السلام کے وزراء بنا دی. یہ صحابہ کرام کا اعزاز ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، سوال کیا کہ اے نبی کائنات کے امام یہ بتائیے کہ ای الناس خیر، لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں میلوں پدروں لوگوں نے دنیا میں آنا تھا، لیکن کائنات کے امام علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا، میری اور آپ کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا القرن الذی انا فی، دنیا کے اندر میری امت کے اندر بہترین لوگوں کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو، بہترین وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھ محمد علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے صلی اللہ. صحابہ ہیں.
ایک مرتبہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا ہے، صرف ایک مرتبہ، اللہ اس خوش نصیب کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم یہ اعزاز اگر کسی کو ملا ہے تو وہ نبی کے صحابہ کو ملا ہے، ایک مرتبہ، اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر بعد میں آنے والے یقینی وہ اللہ رب العالمین کو مانتے ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے صحابہ میں سے کوئی بھی معمولی درجہ رکھنے والا صحابہ وہ اعزاز رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اگر میرے صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی اللہ کے راستے میں ایک مد چند گندم کے دانے، معمولی سا غلہ اور اناج جو آدھا پونا سیر پر مشتمل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی خرچ کر دیتا ہے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دیں، خدا کی قسم بعد میں آنے والے جو ہے صحابہ کے ایک مد اور ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک مٹھی کا، ایک مد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کی شان قرآن میں اللہ نے بیان کی، صحابہ کی عبادتوں کے تذکرے کیے، صحابہ کی آپس کی رواداریوں کا رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ پڑھے قرآن، یہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ فرمایا محمد الرسول والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد علیہ السلام کے صحابہ اتنے عظیم ہیں، اتنا رب العالمین نے نبی کے صحابہ کو مقام دیا ہے۔ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کے صحابہ کی عبادتوں کا ذکر فرمایا، ان کی ریاضتوں کا رب العزت نے تذکرہ فرمایا، ان کے رکوع اور سجود کا اللہ نے اس قرآن میں اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، غور کرنے والی بات ہے، آپ جتنی عبادت کر لیں، جتنی ریاضتیں آپ کی زندگیوں میں ہو، جتنی نمازیں آپ ادا کر لیں، جتنے روزے اللہ اکبر آپ رکھ لیں، اللہ اکبر اللہ کے راستے میں جتنا مال خرچ کرنے والے آپ بن جائے، لیکن جب تک آپ کی زندگیوں میں پیار اور محبت نہیں ہوگی، آپس کی رواداریوں میں آپ نمبر اول نہیں ہوں گے، آپس میں پیار اور صلہ رحمیاں نہیں ہوگی، رب العالمین آپ کی عبادتوں کو بھی ضائع فرما دے گا۔ رب العالمین نے صحابہ کی عبادتوں کے ذکر سے قبل اس آیت میں صحابہ کی رواداریوں کا ذکر کیا، صحابہ کی محبتوں کا، مودتوں کا، ان کے آپس کے پیار کا، نرمیوں کا ذکر فرمایا اشداء علی الکفار، وہ اللہ اکبر غیروں میں سخت تھے، لیکن جب ان کی آپس کی زندگیوں کو دیکھو گے تو وہ انتہائی تمہیں نرم نظر آئیں گے، محبتیں، مودتیں، پیار اور اخوتیں، بھائی چارگیاں ان کی زندگیوں میں نظر آئیں گی۔ رب العالمین نے
सहाबा की मोहब्बत और मवद्दतों की कुरान में जमानतें दी गई। वो सहाबा लड़ते नहीं थे, वो सहाबा झगड़ते नहीं थे, वो सहाबा अगर उनकी जिंदगियों में मामूली सी भी कोई ऐसी बात पैदा हो जाती, फौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ जाया करते थे। किस तरह सहाबा की जिंदगी आ गए। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे। रास्ते में जनाब उस्मान गनी पर नजर पड़ी। उमर फारूक को अल्लाह के नबी की तालीम ये है, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफ़शुस्सलाम वअतिमुत्ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम की सहाबा को, अपनी उम्मत को ये तालीम दी गई, आपस में सलाम को फैलाते रहो। तुम्हारी मुलाकातों से, अल्लाह अकबर, तुम्हारी मुलाकातों के वक्त, तुम्हारे मेल मिलाप के वक्त, तुम्हारे कलाम से कब्ल तुम्हारी जिंदगी और मुलाकातों में सलाम होना चाहिए। अल्लाह के नबी का सहाबी जनाब उमर फारूक गुजरते गए, उस्मान गनी पर नजर पड़ी, कहते गए, अस्सलामु अलैकुम। ए उस्मान, तुम पर अल्लाह की सलामतियां हो। अल्लाह अकबर। उमर इंतजार में गए, गुजर रहे गए, इंतजार में गए कि उस्मान गनी मेरे सलाम का जवाब देंगे, लेकिन उस्मान की तरफ से सलाम का जवाब नहीं आया। अल्लाह के नबी का ये सहाबी जा रहा था, गुजर गया। किसी वक्त अल्लाह के नबी के ये सहाबी उमर फारूक जनाब अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में आए और कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैंने उस्मान को सलाम किया, लेकिन पता नहीं क्या वजह है उस्मान मेरे सलाम का जवाब नहीं दे सके। उस्मान गनी भी आ गए। अब देखें अबू बकर सिद्दीक लोगों में किस तरह अल्लाह अकबर, किस फतानत से, अल्लाह अकबर ज़मानत से फैसले फरमाते थे। यूं नहीं पूछा, ऐ उस्मान, तुम्हें सलाम किया गया लेकिन तुमने सलाम का जवाब नहीं दिया, बल्कि जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ उस्मान, जब उमर गुजरे थे इन्होंने सलाम तेरे किया था, ये तो बताओ तुम किन सोचों में गुम थे, किन सोचों में गुम थे, किन सोचों में गुम थे। अल्लाह के नबी का सहाबी जनाब उस्मान फरमाते गए, हाँ अबू बकर, आपने सही पहचाना, उमर सलाम करे, कैसे हो सकता है कि उस्मान उमर के सलाम का जवाब न दे। अल्लाह की कसम में सोच रहा था। अबू बकर फरमाते हैं, ऐ उस्मान, बताओ क्या सोच रहे थे। अबू बकर सिद्दीक के कहने पर उस्मान कहते गए, ऐ अबू बकर, मैं ये सोचता था, मैं ये सोच रहा था, अल्लाह के नबी आज तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन जब अल्लाह के नबी हयात थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद थे, मेरे ज़हन में सवाल पैदा होता था कि मैं अल्लाह के नबी से ये सवाल करूंगा, मन नजा, अल्लाह के नबी ये बता दीजिए कि निजात किसमें है, निजात के उसूल और कानून मुझे बता दीजिए। लेकिन जब मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में जाता, मेरे जहन से ये सवाल निकल जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ उस्मान, अब खुश हो जा, तेरे लिए खुशखबरी है, जो सवाल तू करना चाहता था, जो जवाब तू अल्लाह के नबी से लेना चाहता था, मैंने अल्लाह के नबी से कायनात के इमाम की जिंदगी में पूछ लिया था। अल्लाह के नबी ये बता दीजिए कि हमारी निजात किसमें है। मैंने अल्लाह के नबी से सवाल कर लिया था, निजात किस
में गए, किस खूबसूरत अंदाज में जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मसले को हल कर दिया। सहाबा अक्सर सवाल करते थे, अल्लाह के नबी बता दीजिए निजात किस में गए, किस तरह इन सहाबा में आपस में मोहब्बतें और प्यार थे, किस तरह आपस की सहाबा में रवादारियां थी। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के सगाबी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सगाबी, जिनका नाम जनाबे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अल्लाह के नबी के चचाजान भाई गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कज़न गए, हजरत अब्बास के बेटे गए। अल्लाह के नबी तो दुनिया से चले गए, कूच कर गए। अल्लाह के नबी के बाद जनाबे अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी दुनिया से कूच कर गए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब इब्ने अब्बास कहते गए, मैं एक जगह से गुजरा, क्या देखता हूँ जनाबे उमर फारूक की मैयत को जनाबे को खुदा की कसम चारपाई पे रखा गया है, और मैंने इर्द गिर्द जमा होने वाले तमाम लोगों को ये देखा कि सब के सब लोग जनाबे उमर के बारे में दुआएं कर रहे थे, जनाबे उमर को दुआएं दे रहे थे, अल्लाह से उसकी बख्शिश, अल्लाह से उसका रहम और करम की भीख मांग रहे गए। मैंने जब लोगों को दुआएं देता हुआ देखा, मैं क्या देखता हूँ, मैं लोगों को तक रहा था, उनकी दुआओं को सुन रहा था, उनकी हज़रत उमर की तारीफ में जो जुमले लोग कह रहे थे मैं बड़े गौर से सुन रहा था। अचानक किसी ने मेरे कांधों पर, मेरे मोहंडों पर अपनी कोहनी रख के ये कहा, यरहमुकल्लाह, ऐ इब्ने अब्बास, अल्लाह तुझ पर अपना रहम फरमा दे, रब्बुल आलमीन तुझ पर अपना रहम फरमा दे। और अल्लाहु अकबर, मुझे ढेरों दुआएं दी, और उस पीछे आने वाले ने ये कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुझे इन दोनों साथियों के साथ क़यामत के दिन इकट्ठा करेगा, खड़ा करेगा, जन्नत में तेरा ठिकाना भी इन्हीं दोनों साथियों के साथ होगा। किसका जिक्र लोग कर लगे गए, जनाबे उमर फारूक का। लेकिन इब्ने अब्बास कहते थे, दुआ देने वाले ने, उम्मीद और यकीन करने वाले ने ये बात कही कि कल क़यामत के दिन मैं उम्मीद करता हूँ, ऐ इब्ने अब्बास, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुझे अबू बकर उमर के साथ खड़ा करेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे, यक़ूलु कुन्तु अबू बकर उमर फ़अल्तु अबू बकर उमर। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम फरमाया करते थे, कुन्तु अबू बकर व उमर फ़अल्तु अबू बकर व उमर, दखलतु अबू बकर व उमर, खरजतु अबू बकर व उमर। मैंने अल्लाह के नबी को ये कहते हुए सुना। कायनात के इमाम फरमाते थे, जब मैं किसी जगह पर जाता, मौजूद होता, मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ अबू बकर भी हुआ करते थे, मेरे साथ उमर फारूक भी हुआ करते थे। और फिर अल्लाह के नबी ये भी फरमाते थे, कायनात के इमाम फरमाते थे कि अल्लाह के नबी का फरमान है, दखल तो, मैं जब किसी जगह पर गया मैं अकेला नहीं था बल्कि मेरे साथ अबू बकर और उमर थे। खरज तो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं जब वहां से वापस पलटता था मैं अकेला नहीं पलटता था बल्कि मेरे साथ अबू बकर और उमर हुआ करते थे। फालतू, जब दुनिया में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं कोई काम करता था, मैं अकेला नहीं बल्कि उस काम को करने में मेरे साथ अबू बकर और उमर हुआ करते थे। अल्लाह के नबी
کے सहाबी गए। इब्ने अब्बास फरमाते गए अल्लाह के नबी के सहाबी पीछे आए, मुझे दुआएं देते गए कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी के साथ ये दोनों उनके साथी होंगे। और मैं दुआ इब्ने अब्बास तुझे देता हूं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह इन दोनों साथियों शेखैन के साथ तुझे क़यामत के दिन खड़ा करे। यकीनी वो आवाज पहचान चुके गए, लेकिन वो कहते गए इब्ने अब्बास, मैंने जब मुड़ के देखा कि है कौन, लोग कहते हैं ये सहाबा आपस में लड़ते झगड़ते थे। खुदा की कसम कुरान कहता है ये आपस में मोहब्बत मवद्दतों वाली नरमियों वाली जिंदगी गुजारा करते थे। कहने वाला, दुआएं करने वाला, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी के अल्फाज और हदीस सुनाने वाला, जो इब्ने अब्बास को सुना लगा है, दुआएं दे लगा है, ये कौन है? वो कहते हैं मैंने पलट के देखा, वो अल्लाह अकबर नबी के सहाबा में कोई और सहाबी नहीं बल्कि अली बिन अबी तालिब मुझे दुआएं दे लगे। कौन दुआएं दे रहे? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सहाबा इब्ने अब्बास हो, अली है, उमर फारूक है, अबू बकर सिद्दीक है, ये जितने भी सहाबा थे, रब जब कुरान में जमानतें, इनके प्यार और इनकी मोहब्बतों की जमानतें दे रहा है। खुदा की कसम अगर कोई आज अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाला ये कहे कि सहाबा आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं, ये उसके ईमान की कमजोरी है। आज वो अपने ईमान की सलामती अगर चाहता है तो अपनी जिंदगी में उसी तरह नबी से मोहब्बत करे। अल्लाह अकबर, जिस तरह मोहब्बत करने का नबी से हक है, और सहाबा इकराम से भी उसी तरह मोहब्बत करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर सहाबा की इज्जत और अजमत को बयान किया। अल्लाह के नबी फरमाते ईमान की अलामत और उसकी निशानियों में से यह है कि अल्लाह अकबर, तुम अंसार सहाबा से मोहब्बत करो, और मुनाफिकीन की अलामत और उसकी निशानियों में से यह है कि वो अंसार से बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं। सहाबा से मोहब्बत करना ये ऐन ईमान है। सहाबा से बुग़्ज़ और अदावत अगर कोई रखता है, दिलों में नफरतें रखता है, यकीनी वो अपने ईमान को बचाने की कोशिशें करे। अल्लाह अकबर, रब्बुल आलमीन तो ये फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। रब्बुल आलमीन आसमानों से उसूल नाज़िल कर रहा है। इंसान की जिंदगी में अगर ईमान है तो अल्लाह उसे कामयाबियों की मंजिलों पर फाइज कर देता है। ईमान नहीं, दुनिया में जितने अमल कर ले, इंसान की सारी मेहनत बेकार कर दी जाएगी, हवा मंसूरा हो जाएगी। उसकी जिंदगियों में किए हुए अमाल, खुदा की कसम, नेकियां उस वक्त बनेंगे, सवाब का जरिया उस वक्त बनेंगे जब वो अपनी जिंदगी में ईमान लेकर आएगा। एक अदना से अदना मोमिन की रब ने ये शान बनाई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी हरम में बैतुल्लाह में मताफ में खड़े थे और बैतुल्लाह को इशारा किया कायनात के इमाम ने, ऐ बैतुल्लाह, रब ने तेरी बड़ी शान बनाई है। ऐ बैतुल्लाह, अल्लाह ने तुझे बड़ी इज्जत से नवाजा है। ऐ काबतुल्लाह, रब ने तुझे बड़ी रिफात और मर्तबत से नवाजा है। लेकिन सुन ले, कहने वाले कौन है? मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के घर, ऐ बैतुल्लाह, ऐ काबतुल्लाह, सुन ले, रब्बुल आलमीन ने जो एक मेरे मोमिन की शान और मकाम बनाया है, वो इज्जत रब ने तुझे भी नहीं अता फरमाई। जो मोमिन को रब्बुल इज्जत ने शान अता की है, वो ऐ बैतुल्लाह, तुझे भी रब्बुल इज्जत ने अता नहीं की। मोमिनों के हवाले से सही मानों में मोमिन कौन थे? जब कुरान नादिल हो रहा था, रब कहता है, फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल
इज्जत और अजमत में नादिल फरमाई गए, सहाबा की शान में नादिल फरमाई, सहाबा के रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ईमान के हवाले से रब्बुल इज्जत ने नादिल फरमाई, वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन। हिदायत के आ जाने के बाद, हिदायत के आ जाने के बाद अगर तुम खुदा की कसम मुमिनीन के रास्ते को छोड़कर गैर सबीलिल मुमिनीन पर अमल करोगे, अल्लाह कहता है हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। मुमिनीन के रास्तों को, मुमिनीन की सिफात को, मुमिनीन की अलामात को, मुमिनीन के अल्लाहु अकबर नेकियों को, मुमिनीन के तर्ज जिंदगी को, मुमिनीन जैसी नमाजों को, मुमिनीन जैसी रोजों को, मुमिनीन जैसे हज और उनके जिहाद को छोड़कर गैर सबीलिल मुमिनीन पर अगर अमल करोगे, रब कहता है नुवल्लिही मा तवल्ला, जिस रास्ते पर तुम जा रहे होगे हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन याद रखो नुस्लिही जहन्नम गैर सबीलिल मुमिनीन पर अमल करने वालों का हमने इंतहाई दर्दनाक ठिकाना जहन्नम की सूरत में बनाया है। गैर सबीलिल मुमिनीन कौन है? जिस वक्त ये कुरान की आयत उतर रही थी, खुदा की कसम नबी के सहाबा थे। मैंने कहा ना, जब ये कुरान उतारा है रब ने लोगों का, इबाद का, अपने बंदों में रब्बुल इज्जत ने इस कुरान के हवाले से चुनाव किया है, इंतखाब किया है। इस कुरान का वारिस पूरी उम्मत है अल्लाह के नबी की, लेकिन सबसे पहले अगर किसी को एजाज मिला है इस कुरान के वारिस बनने के हवाले से, तो वो नबी मुकर्रम कायनात के इमाम के सहाबा को एजाज मिला। वो असल इस कुरान के वारिस हैं, हमें तो बाद में मिला है। वो वारिस हैं। फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर हिदायत के आला मनसबों पर फायद होना चाहते हो, आला मकाम हासिल करना चाहते हो, ईमान लाना जरूरी है। और ईमान भी अगर लाना चाहते हो तो रब ने कसौटी बयान कर दी, उसूल और कानून बयान कर दिया। ईमान तो रब पे लाओगे, ईमान तो नबी पर लाओगे, ईमान तो क़यामत के दिन पर लाओगे, ईमान तो तकदीर की अच्छाई और बुराई पर लाओगे। लेकिन अल्लाह कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि, अगर अपने ईमान को अल्लाह की कबूल करवाना चाहते हो तो उस तरह ईमान लाओ जिस तरह मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। तुम्हारा ईमान उस वक्त कबूल होगा कि जब तुम अपना ईमान मेरे नबी के सहाबा जैसा ईमान लेकर आओ। नबी के सहाबा एक से एक बढ़कर सहाबा इनकराम के अंदर ईमानी कुव्वत रखने वाला सहाबी है। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, अगरचे हर सहाबी ईमानदार है, मोमिन है, लेकिन कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो ईमान अता फरमाया है, वो ईमान की तक़वियत रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त दीगर सहाबा भी वो ईमानी कुव्वत से नवाजे गए थे। आज का कोई मोमिन कहलवाने वाला खुदा की कसम उन सहाबा के पैरों में, जूतियों में लगी हुई धूल और मट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकता कोई। अल्लाह ने एक एक सहाबा को वो ईमान अता फरमाया था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन सहाबा के ईमानों को तोला जाए तराजू के एक पढ़ने पर। अल्लाह अकबर। बाद ने इस हदीस का तर्जुमा यूं किया है, अबू बकर के ईमान के मुकाबले पर किसी को भी तराजू के दूसरे पढ़ने पर रख दिया जाए। और बाद उलमा इस हदीस की वजाहत यूं करते हैं, नबी की उम्मत के एक एक फर्द को तराजू के पढ़ने पर रख दिया जाए, उसके ईमान को रख दिया जाए, और दूसरे पढ़ने पर अबू बकर सिद्दीक के ईमान को रख दो। ये सब के ईमान मिलकर भी अबू बकर के ईमान का वजन
अबू बकर के ईमान का खुदा की कसम बराबरी नहीं कर सकते। अबू बकर का ईमान भारी, अगर एक का ईमान भी ले लें तो सबसे ज्यादा कभी ईमान रखने वाला अल्लाह के नबी की उम्मत में कौन है? बोले कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह ने बड़ी शान बनाई है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, बड़ा मकाम है। आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के सहाबी है। सहाबी का नाम जनाबे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो गया, कायनात के इमाम की खिदमत में आए बिलाल हबशी और आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे जिस्म की कुव्वत इजाजत नहीं दे रही कि मैं अपने हुजरे से निकलकर अपने मुसल्ले पर आके तुम्हारी इमामत करवा सकूं। तुम खुद ही आपस में नमाज पढ़ लो, तुम खुद पढ़ लो नमाज। अबू बकर सिद्दीक का नाम क्या है? आपको बताया अबू बकर सिद्दीक का नाम? जज़ाकल्लाह। अब्दुल्ला, अल्लाह का पसंदीदा नाम। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह के पसंदीदा दो नाम है, एक अब्दुल्ला, दूसरा बोले बोले मुसलमान हैं आप, मोहब्बत से बोलते जाएं, अब्दुल्ला और दूसरा नाम अब्दुर्रहमान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी का असल नाम जो है वो, पिछली जिंदगी को छोड़ दीजिए जो भी मामला, लेकिन इस्लाम लाए, ईमान लाए, अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये एजाज हासिल है। अबू बकर सिद्दीक का नाम भी वो है जो रब्बुल आलमीन का पसंदीदा नाम है। अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान, और अबू बकर सिद्दीक को यह एजाज हासिल है कि अबू बकर सिद्दीक खुद भी सहाबी थे, वालिद भी सहाबी थे, बेटा भी सहाबी था, पोता और नवासा भी सहाबी था। यह एजाज अबू बकर सिद्दीक को रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह भी शर्फ मिला है कि कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम अगरचे अलालत में थे, कमजोरी में थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने कायनात के इमाम के मुसल्ले पर पढ़ाई है। 17 नमाज। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अबू बकर को जन्नत की बशारतें दी है। आपने सुना कि अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली अल मुर्तदा शेर खुदा जन्नती है, साद और सईद, तलहा, जुबैर ये जन्नती है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नती है। इन सब सहाबा को अल्लाह के रसूल ने अशरा मुबशरा को जन्नत की बशारतें दी है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो एजाज रखते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जिंदगी में 22 मरतबा जन्नत की बशारतें दी है। 22 मरतबा ये मकाम है अबू बकर सिद्दीक का। और ये भी अल्लाह ने ये एजाज अगर किसी को दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि नमाज के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आइए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मुरु अबा बकर, अबू बकर से कहो कि मैं मोहम्मद कहता हूं कि मेरे मुसल्ले पर जाके नमाज पढ़ाओ। अज़वाज मुतहरात हजरत आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल मेरे बाबा बड़े कमजोर दिल के हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, नमाज के लिए मुसल्ले पर आगे नहीं जा सकेंगे। अल्लाह के रसूल किसी और से कह दी दीजिए। अल्लाह के नबी नाराज हो जाते हैं, हुक्म जारी फरमाते हैं कायनात के इमाम, मैं कहता हूं कि तुम अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ऐसा भी मौका आया कि अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह के नबी की हिम्मत हुई, अल्लाह के रसूल 2 सहाबा के कांधों पर हाथ रख के मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ ला रहे हैं। इतनी अलालत में, इतनी कमजोरी में, इतनी नकाहत में, इतनी बड़ी बीमारी में, इतनी कमजोरी में कायनात के इमाम मस्जिद में नमाज के लिए, टाइम खत्म हो, इतनी कमजोरी में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं। सहाबा कहते हैं जब 2 सहाबा के कांधों पर अल्लाह के रसूल ने हाथ रखे हुए थे, हमने देखा कि कायनात के इमाम के दोनों पैर जो है वो जमीन पर खिसकते हुए, रगड़ते हुए आते, इतनी कमजोरी की हालत में।
ہماری کیفیت حضرہ تھوڑا سا نزلہ ہو جائے ہمیں جناب اتنی کمزوری اتنی نقاہت آ جاتی ہے کہ ہمارے ناد اور نخرے ہی ختم نہیں ہوتے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, تصاویر کا دور ہے, نیٹ کا دور ہے. معمولی سی اسے کھانسی شروع ہو جائے حضرت صاحب کا پیغام جو ہے وہ نیٹ پہ چل جاتا ہے کہ حضرت بیمار ہو چکے, حضرت بیمار ہیں. اگر مر گئے تو رب کے ہاں میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لائے, لوگوں نے ابو بکر کو آگاہی دی. نماز کی حالت میں جناب ابو بکر پیچھے آنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ کھڑے ہو. کائنات کے امام بیٹھ جاتے ہیں. ابو بکر اللہ کے نبی کے برابر میں موجود گئے. اللہ کے نبی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر. نقافت اور کمزوری میں اللہ کے نبی کی آہستہ آہستہ آواز نکل لگی گئے جو ابو بکر صدیق کے کانوں میں پڑتی ہے. اور پھر ابو بکر کہتے ہیں اللہ اکبر. کائنات کے امام نے ابو بکر کی امامت کروائی. میں تو یوں کہتا ہوں شاید کسی کو اختلاف ہو, میں تو ابو بکر کی محبت میں یہ کہتا ہوں صحابی رسول کی محبت میں یوں سمجھا ہو خلیفہ بلا فصل کی محبت میں ان کی شان اور ان کی عظمت جو ہم نے بیان کی, اللہ کے نبی نے ان کے فضائل بیان کیے. میں یہ سمجھا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو جماعت کرائی اور پھر اسی جماعت میں ابو بکر اللہ کے نبی کے صحابہ کو جماعت کرا لگے تھے. کائنات کے امام کی زندگی میں ایسا بھی وقت آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی, اللہ کے نبی کے صحابی اللہ اکبر بلال حبشی کائنات کے امام کی خدمت میں گئے اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا, لوگ جمع ہو چکے ہیں, نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے. ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے, مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. اللہ اکبر مشکل الآثار میں یہ روایت موجود ہے اور غالباً ابن ماجہ میں بھی روایت موجود ہے. البانی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن درجے کی قرار دیتے ہیں. بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے لیے تشریف لے آئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھا لو, نماز پڑھ لو. بلال نے صفوں میں نظر ڈالی, ابو بکر نظر نہیں آئے. عمر سے کہا اے عمر آپ اللہ کے نبی کے مصلی پر تشریف لے آئے. عمر فاروق مصلی پر گئے. بلال حبشی نے تکبیر کہی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ اکبر آواز دراز تھی. حضرت عمر فاروق نے اپنی دراز آواز میں اللہ اکبر جیسے ہی فرمائی, اللہ کے نبی کے کان میں عمر کی آواز گئی. اللہ کے نبی غصے ہو گئے, اپنی چارپائی سے کھڑے ہوتے گئے اور اللہ کے نبی اپنے حجرے کی کھڑکی جو اللہ کے رسول اللہ کے نبی کے حجرے کی کھڑکی جو مسجد کی طرف نکلتی تھی, کائنات کے امام نے فرمایا لا خدا کی قسم رب بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے مصلی پر ابو بکر آئے. مومنین بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے نبی کے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی آئے. لا عمر نماز پڑھا رہے تھے, عمر نماز پڑھا چکے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی جناب ابو بکر تشریف لے آئے. لوگوں نے کہا اے ابو بکر آج یہ مسئلہ اس طرح ہم نے دیکھا ہے. ابو بکر بھی بے چین ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لے گئے.
अल्लाह के नबी की खिदमत में चले गए। अल्लाह के नबी पूछते थे अबू बकर कहाँ गए थे? कहा अल्लाह के रसूल गया हुआ था, नमाज के वक्त आ नहीं सका। महबूब पूछते हैं कि तुमने नमाज पढ़ ली या नहीं पढ़ी? अबू बकर कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने नमाज नहीं अदा की है। पैगंबर फरमाते हैं ऐ अबू बकर जिन्होंने नमाज अदा की है उमर के पीछे, इन सब को जमा करो, दोबारा नमाज पढ़ाओ। उमर के बारे में अबू बकर कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी उमर नमाज पढ़ा चुके हैं, लोगों ने नमाज पढ़ ली है। कायनात के इमाम फरमाते हैं हाँ हाँ मुझे मालूम है कि अब उमर ने नमाज पढ़ाई है, उमर की इब्तिदा में मेरे सहाबा ने नमाज पढ़ ली है, लेकिन मैं मोहम्मद कहता हूँ अलैहिस्सलाम लोगों को जमा करके दोबारा नमाज पढ़ाई जाए। यकीनी उलमा इससे यही कहते हैं कि अबू बकर की फर्द होगी और दीगर लोगों की नफिल हो जाएगी। इस तरह के दीगर वाकयात भी मिलते हैं कि सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की इमामत में नमाज पढ़ के जाते और अपनी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाते लोगों को, और वो सहाबी जो है फर्ज की नहीं बल्कि नफिल की नियत करते थे। दीगर लोग जो है उस सहाबी रसूल के पीछे फर्द नमाज की नियत करके और उसके पीछे अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाते। इमाम और मुक्तदी की नियत में फर्क चलता है। इमाम की फर्द हो, लोगों की नफिल हो, इमाम की नफिल हो और लोगों की फर्द हो। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की आखिरी बात, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब अबू बकर सिद्दीक ने इतनी कुर्बानियां दी, इतनी कुर्बानियां दी। एक वक्त आया कि अल्लाह के नबी कायनात के इमाम से ये सहाबा कहते हैं, अबू बकर भी कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल हर फर्द अपने अपने खानदान अपने अपने कबीले वालों को अल्लाह की तौहीद की दावत दे। मैं अपने लोगों में जाता हूं, इस सहाबी को अपने लोगों में भेज दो। अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह की तौहीद की दावत दी। अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा, इतना मारा, इतना चेहरे पर ज़रबे लगाई कि अबू बकर सिद्दीक का चेहरा सूज जाता है। जमीन पर गशी खा के अबू बकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लोग उठा के अबू बकर को उनके घर में ले गए। होश आई, माँ कहती है पानी पी ले बेटा, माँ कहती है चंद लुकमे अपने मुंह में डाल ले। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा जब तक मुझे कायनात के इमाम की खबर न मिल जाए। मुझे ये बताओ मेरे नबी कायनात के इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम कैसे हैं? अल्लाह के नबी की खबर के बारे में अल्लाहु अकबर मुतमन्नी लगे। हजरत आयशा ने पूछा, मशहूर रिवायत है, आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकी आ गए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा हाँ मेरे सगावा में जनाब उमर फारूक की नेकी आ गए। आयशा सोच रही थी कि मेरे बाबा की जिंदगी की नेकियों के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाएंगे आसमान के सितारों के बराबर थे बाबा अबू बकर की नेकी आ गए। अल्लाह के रसूल चेहरा देख कर पहचान गए और फरमाते हैं आयशा तू समझ रही थी कि मैं तेरे बाबा को नाम दूंगा? नहीं नहीं, पूरी जिंदगी की उमर अबू बकर की नेकियों का क्या कहना, जो अल्लाहु अकबर हिजरत के मौके पर एक रात गारे सौर में तेरे बाबा ने मेरे साथ गुजारी थी। अल्लाह की कसम अबू बकर सिद्दीक की सिर्फ एक रात की नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। एक रात, सारी जिंदगी का क्या। नबी अलैहिस्सलाम का ये सहाबी जा रहा था, चंद यहूदियों की आवाज सुनी। उन यहूदियों में जो बड़ा था वो ये कह रहा था कि मुसलमानों का रब जो है वो फकीर हो गया है, हम अमीर है, हम
गनी है। ये सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करते थे। चे जाए कि रब्बुल आलमीन की गुस्ताखी को ये कैसे बर्दाश्त करेंगे। उस यहूदी ने कहा कि हमारा मुसलमानों का रब और माबूद जो है वो फकीर है और हम गनी हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये कलमे उसके सुने, उस जालिम के दौड़ते हुए गए और उसको तमाचा जोर से रसीद कर दिया, तमाचा रसीद कर दिया। अब जाहिर है अबू बकर को मक्के में तो वो मार सकते थे, मदीना में है किसी में तप्पड़, मदीना की रियासत है, यहां पर जुल्म और ज्यादतियां नहीं चलेंगी। अल्लाह और उसके रसूल की कोई गुस्ताखी करेगा उसे सजा मिलेगी। अल्लाह और उसके रसूल के हुदूद को जो क्रॉस करेगा उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा। जराइम की दुनिया में अगर कोई जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा, हुदूदुल्लाह का उस पर निफाज किया जाएगा। उस जालिम ने यह कहा कि मुसलमानों का रब फकीर है और हम अमीर है, हम गनी है। अबू बकर सिद्दीक ने रब की शान में यह गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की, तमाचा रसीद कर दिया। अबू बकर सिद्दीक ने उसको, वो लोग सब के सब अबू बकर को मारने की हिम्मत और जुर्रत तो ना कर सके। बात खत्म कर रहा हूं, मुसलसल पर्चियों पे पर्चियां हिलाई जा रही है। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास वो यहूदी मिलकर आ गए। कहा जी अबू बकर ने हमें तमाचा मारा है, हम इसलिए आए हैं आप लोगों को बदला दिलवाते हैं। अबू बकर ने चूंकि तमाचा मारा है, हमारे साथी को, हमारे बड़े को बदला दिया जाए, हम यहां पर अबू बकर से बदला लेने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर बोलो तुमने क्या तमाचा मारा है? अबू बकर सिद्दीक है, कभी झूठ नहीं बोलता। अबू बकर ने फरमाया जी अल्लाह के रसूल मैंने तमाचा मारा है। अल्लाह के रसूल इसलिए मारा है, यह भी पूछ लीजिए कि अल्लाह के रसूल ये हमारे अल्लाह को फकीर और मंगता कह रहे थे और कहते थे कि रब के मुसलमानों के रब के मुकाबले में हम यहूदी जो है वो गनी है। अल्लाह अकबर। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहूदियों हाँ तुमने ये क्या बात कही थी, वो झुठला देते हैं, मुकर जाते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर ये तो इनकार कर रहे हैं और तुम कहते हो मुझे यकीन है, लेकिन उनकी तरफ से मुतालबा ये होता है ऐ मोहम्मद अलैहिस्सलाम अगर हमने ये बात कही है तो अबू बकर से कोई गवाह पेश करवाओ। और उस वक्त कौन थे मुसलमानों में? सिर्फ अबू बकर, सिर्फ अबू बकर थे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर गवाह ले आओ। अबू बकर कहते गए अल्लाह के नबी उस वक्त ये सारे यहूदी इकट्ठे थे, जमा थे, जब ये रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। अल्लाह के नबी मैं मुसलमानों में अकेला था। शायद अल्लाह के नबी फैसला फरमा देते कि अबू बकर ने मुंह पे या जिस्म के किसी हिस्से पर तमाचा मारा है, अबू बकर को बदला दो, तमाचे के बदले तमाचा अबू बकर को मारा जाएगा। अभी ये बातें चल रही थी, फैसले के लोग मुंतजिर थे, अनकरीब फैसला होने वाला था। आसमान से वही का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। दुनिया वालों में अगरचे अबू बकर की शहादत देने वाला कोई नहीं, अबू बकर के हवाले से गवाही देने वाला कोई नहीं। खुदा की कसम सारे मिलकर किसी की गवाही दे, लेकिन अल्लाह अकेला किसी के हक में गवाही दे, क्या उसकी शान होगी? अल्लाह के नबी की बेटी आयशा पर, अल्लाह के नबी की बीवी आयशा पर अबू बकर की बेटी पर इल्जाम लगाया गया। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, अल्लाह के नबी ने अबू बकर, अल्लाह ने अबू बकर के बारे में भी कुरान नाज़िल किया। ये गवाह मानते हैं। अल्लाह कहता है मैं अल्लाह अबू बकर की गवाही देता हूँ। लक़द समिअ अल्लाहु
मुसलमानों के रब के मुकाबले में हम गरीब हैं, मुसलमानों का रब फकीर है। इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अपनी बात को खत्म करता हूँ इशारा करते हुए अल्लाह कहता है जब ये जालिम कहते थे कि अल्लाह फकीर है, रब के मुकाबले पर हम गरीब हैं, अल्लाह अकबर, दुनिया वालों में अगर अबू बकर की कोई शहादत दे न दे, मैं अल्लाह आसमानों से उन जालिमों के जुल्मों को सुन चुका हूं। मैं शहादत देता हूं कि ये यहूदी बदबख्त है, मुझ अल्लाह के बारे में कहते थे कि ये फकीर है, इनका रब ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रब ने उनकी बड़ी शान, बड़ा मकाम बनाया है, बड़ा तवील मौजू है। अल्लाह अकबर। बस यूं कहिए, आज अगर कोई कहता है कि अबू बकर सिद्दीक के अदालत जो है, अल्लाह अकबर, जालिम कोई मर्द हो या औरत हो या किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाली हो, अबू बकर सिद्दीक पर उंगली उठाती है। रब ने तो अबू बकर के ईमान के, अबू बकर की अदालत के, अबू बकर की फकाहत के, अबू बकर की शान के तस्करे, अबू बकर की इज्जत और अजमत के तस्करे, अबू बकर की सीरत के, अल्लाह अकबर रब्बुल इज्जत ने कुरान में रुहमाउ बैनहुम कहीं कहा, कहीं फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम कहा, और कहीं वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन कहा, कहीं रुहमाउ बैनहुम रब्बुल इज्जत ने कहा, कहीं लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल लक़द समिअ अल्लाहु क़ौल लल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह, ये कहकर अबू बकर सिद्दीक की शान बयान की। और कहीं रब्बुल इज्जत ने फरमाया गार में दो थे, एक मोहम्मद थे और दूसरा अबू बकर था। एक मोहम्मद थे, दूसरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। सनदन कुछ रिवायत कमजोर है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबा कहते हैं एक मरतबा अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, सीधे हाथ में अबू बकर का हाथ, दूसरे हाथ में उमर का हाथ। नबी मुस्कुरा रहे थे और ये शेखैन भी मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अकबर। सहाबा ने इन तीनों को मुस्कुराता हुआ देखा, अल्लाह के नबी के सहाबा भी मुस्कुराने लगे। पैगंबर ने तमाम सहाबा को मुस्कुराते हुए देखा और फरमाया मेरे सहाबा, जिस तरह आज तुम हम तीनों को मुस्कुराते देख रहे हो, कल क़यामत के दिन भी तुम इसी तरह हम तीनों को देखोगे, इन तीनों हम तीनों को देखोगे। ये अबू बकर की शान है। और बाग़ फ़िदक के हवाले से इंशाअल्लाह हो सकता है उलमा बयान करेंगे। बस इतना कहूँगा, अबू बकर सिद्दीक ने ज़्यादती नहीं की, नहीं की। अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाई और एक मौके पर नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के दफन का मामला आया, आपके कफन का मामला आया, आपके गुस्ल का मामला आया, आपके जनाजे का मामला, सारे मामलात में खिलाफत का मामला आया। हर मामले में अबू बकर सिद्दीक को रब ने वो इल्म अता किया था। मुसलमानों में इफ्तिराक और जुदाइयां पैदा हो रही थी, अल्लाह अकबर, इंतशार हो रहा था, मुमकिन था मुसलमान जो है किसी मामले में आपस में लड़ जाए। अबू बकर सिद्दीक हदीस सुनाते जाते, लोगों के दिलो दिमाग को ठंडा करके फैसला फरमाते जाते। इसी तरह फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि इसकी आमदनी हम तुम्हें देंगे, ये अल्लाह और उसके रसूल का हक है, ये अल्लाह के नबी की हदीस है कि उसको रब के रास्ते में सदका कर दिया जाता है। आगे मैं इतना कहूँगा, उमर का दौर आया, उस्मान का दौर आया, फिर अली का दौर आया था ना, अली रज़ी अल्लाह ताला, तो उस बाग को हजरत अली ने अपने नाम पर अलॉट क्यों नहीं किया? हसन हुसैन को क्यों नहीं दिया? हो सकता है लोग कहें कि अली अल्लाह के रसूल के दामाद हैं, लेकिन बाद में आने वाले वक्तों में हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी तो दौर आया था। उस वक्त हजरत हसन ने क्यों मुतालबा नहीं किया, क्यों अपने नाम पर अलॉट नहीं? फिर ये सिर्फ हजरत फातिमा, हसन हुसैन और अली का ही इसमें हिस्सा नहीं बनता था। अगर बनता होता उसमें तमाम अज़वाज मुतहरात के हिस्से थे। अबू बकर सिद्दीक ने ना अपनी बेटी को उस माल में से, बाग में से मिल्कियत उसको दी, ना हजरत उमर की बेटी को उसका मालिक बनाया। बहुत तवील है यह मामला। बहरहाल ज्यादती नहीं की अबू बकर ने। अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।